حامدا ومصليا ومسلما وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسن انتظام، کثرت علماء اس بات پر غماز ہے کہ نارتھ ایسٹ کی سنیت بھی زندہ باد ہے۔ سبحان اللہ۔ 25 منٹ میں یہ بتاؤں گا from beginning to ending there is no person can overtake اسلام۔ جس زمانے میں سائیکل آئی تھی دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ سائیکل نے مہینوں کا سفر دنوں میں بدل دیا تھا، لیکن اس کو بیٹ کیا، اوورٹیک کیا موٹر سائیکل بنانے والے نے۔ اس سے زیادہ مائنڈ، عقل اور دماغ لے کے پیدا ہوا تھا۔ موٹر سائیکل کو بھی اوورٹیک کیا فور ویلر والے نے، کیونکہ اس سے زیادہ اسپیڈ رہتی ہے اس کو۔ اس وقت سٹل اسپیس 28,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چلتا ہے، اس نے سب کو بیٹ کیا۔ آپ میں سے موسٹلی لوگ جانتے ہوں گے ناسا کمپنی اسپیس کی بہت بڑی کمپنی مانی جا رہی تھی، اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ایلن مسک کمپنی نے۔ وہ اسپیس میں لے بھی جا رہے ہیں اور واپس بھی لائیں گے۔ آج بھی اگر کوئی شخص انکلوڈ ان نارتھ ایسٹ میں ایسی سواری بناتا ہے جس کی رفتار لائٹ سے بھی زیادہ ہے، لائٹ کی رفتار کے بارے میں سائنٹسٹ نے کہا 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ، 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار ہوتی ہے روشنی کی۔ اس سے زیادہ فاسٹر اگر کوئی چیز بناتا ہے انسان، ایلن مسک کو بھی بیٹ کرے گا۔ اسلام کو اوورٹیک کو اس لیے نہیں کر سکتا کہ اوورٹیک کرنے کے لیے مائنڈ چاہیے، عقل چاہیے، اور عقل کے بارے میں سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ 100 ملین نیورونز انسان کے دماغ میں ہیں اور 100 ٹریلین کنیکشن انسان کی عقل میں ہے۔ نیورونز مینس وائر، کنیکشن مین جوائنٹ۔ وائر اور جوڑ جتنے زیادہ ہوں گے میموری پاور اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔ جسٹ لائک ٹیکسمو کی موٹر پاور، 1 ہارس پاور کی موٹر اتنے وائر ہوتے ہیں، 2 ہارس میں اتنے، 3 میں اتنے، 4 میں اتنے، ڈیم پہ چلے جائے 500 ہارس پاور کی موٹر ہوتی ہے، اتنے وائر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وائر جتنے زیادہ ہوں گے پاور اتنی ہی زیادہ۔ یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی عقل دی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میموری پاور کا کیا حال ہے؟ سائنٹسٹ نے یہ بھی لکھا 1 ملین بلین گیگا آف بائٹس ڈاٹا انسان کی میموری میں سے ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ اگر کوئی عقل لے کے آ جاتا ہے تو اسلام کو اوورٹیک کر سکتا ہے، لیکن نبی کی میموری پاور کے بارے میں علامہ زینی دہلان رقم تراز ہے، ان اللہ تعالی لم یعط جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقلہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کحبۃ الرمل من بین رمال الدنیا۔ پورے ریگستان میں سے ایک ریت کا ذرہ لے، اس ایک ذرے ریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمام ریگستان کے سامنے۔ آدم سے لے کر قیامت تک
अंबिया, वकला, फजला, नौकबा, बोलगा, साइंटिस्ट न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, फिसागोरी, सुकरात, बुकरात, एपीजे अब्दुल कलाम, कयामत तक जितने साइंटिस्ट होंगे सबकी अक्ल एक जर्रे रेत के बराबर है, और मुस्तफा की अक्ल तमाम रेगिस्तान से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, इंसान अपनी मेमोरी और अक्ल का इस्तेमाल करता है। जमीन, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट सब कुछ तो तू ही देती है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। इंसान ने उसकी इबादत की, लेकिन अक्ल को इस्तेमाल जब किया तो कहा नहीं यार, मिट्टी से ज्यादा पावरफुल तो स्टोन है। 100 ग्राम मिट्टी का ढेला ले, 50 ग्राम पत्थर ले और दोनों को टकराए, 50 ग्राम पत्थर मिट्टी के टुकड़े टुकड़े करके हवा में तहलील कर देगा। मेमोरी अपडेट होती है और कहना है रिजेक्ट द क्ले, सेलेक्ट द स्टोन। मिट्टी को छोड़े और पत्थर की इबादत करे। माउंट एवरेस्ट और जबराल्टर की पूजा की गई है। इंसान ने मेमोरी का इस्तेमाल किया और ये देखा धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में टनों चट्टान को लोहे की मशीन में रख के पीस दिया जाता है। इंसान ने कहा नहीं, पत्थर ज्यादा ताकतवर नहीं, लोहा ज्यादा ताकतवर है, उसकी इबादत होनी चाहिए। लोहा को मियां फिल्मिया से ज्यादा टेम्परेचर पर रख दे, हरारत पर, आग पर, तो आग लोहे को जलाकर भी पिघलाकर सयाल मादा बनाकर बढ़ा देती है। लोगों ने कहा लोहा ज्यादा पावरफुल नहीं है। अय्युहन्नास अन्ने के महबूद नहनु नअबुदुक, ओ फायर यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोगों ने इबादत की है आग की। नारायण नमरूद जब आसमान से बातें कर रहे थे, बारिश के चंद कतरात ने उसे बुझाकर काफूर कर दिया। अक्ल अपडेट होती है और आग को रिजेक्ट करके वाटर को सेलेक्ट करती है। तू ज्यादा ताकतवर है, गंगा, यमुना, दजला, फुरात, नील, अहमर, समंदर, ओशीन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। इंसान ने वाटर की इबादत की और सतहे आबे बहर पर मई जून में दिन के 12 बजे सूरज अपनी शुआ को समंदर की छाती पर बैठाता है और सूरज की शुआ की हरारत से वाटर भाप बन के ऊपर जाने लगता है। लोगों ने कहा नहीं यार, ये ज्यादा पावरफुल नहीं दिखता, सूरज ज्यादा पावरफुल है। ओ सन यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। तू ज्यादा ताकतवर है। साइंटिस्ट ने सूरज के बारे में लिखा 3,33,000 गुना ज्यादा वेट है सूरज का धरती की बनिस्बत। कितना? 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती के अकॉर्डिंग। 13 लाख, ये जो जमीन देख रहे हैं ना, 2 किस्में हैं इसकी, और मुहीक़ात, जिसको बर्रे आज़म और बहरे आज़म कहा जाता है। बर्रे आज़म भी साथ है और बहरे आज़म भी साथ है। ये पूरी जमीन 13 लाख ऐसी जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। 13 लाख। आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे लोगों ने भी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड सूरज को माना है। सूरज सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे बड़ा है। दिखने वाली गैलेक्सी के अंदर मटेरियल स्टार, बिग स्टार सूरज है, सबसे बड़ा। लेकिन जब सब साइंटिस्ट भी सूरज को सबसे बड़ा मान रहे हैं और अदना, औसत, मुमताज, आला सब के सब कह रहे हैं सूरज सबसे बड़ा है, उसकी इबादत होनी चाहिए। ऐसे माहौल में खल्लाक़े दो आलम ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बदन से एक बच्चा मक्के की धरती पर मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा फरमाता, और वही प्यारे मुस्तफा मकामे सहबा में अली की नमाज के लिए सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते हैं और कहते हैं पलट। ये जवाब था ऑक्सफोर्ड के लिए, कैम्ब्रिज के लिए, न्यूटन, आइंस्टाइन के लिए कि तू सबसे ज्यादा पावरफुल जिसको मानता है वो तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। और जब नौकर का ये हाल है तो मालिक का क्या हाल होगा? So let's go, say la ilaha illallah.
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुनियादी तौर से दिया स्टूला है ABCD EFGH IJK LMNO PQR ST UVWXYZ। पढ़ने वाले नर्सरी LKG UKG 5th 10th ग्रेजुएशन BU MS MA BS MD IS IPS बैरिस्टर कलेक्टर राजदूत बनता है। There is other line अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन स्वाद वा ता वा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या। पढ़ने वाला नादरा खा हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर मुशर्रिह गौस अब्दाल मातिन बनता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ लाइन? बुनियादी तौर से सुने। इस वक्त सेंट पायर, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, लिटिल फ्लावर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, जेएमयू, एमयू, सब के सब यूनिवर्सिटीज ABCD वालों का ये कहना है कि पूरी दुनिया बनने से पहले एक डॉट की शक्ल में थी, एक डॉट की शक्ल। अचानक वो डॉट फटता है और सिलचर बन जाता है, कोलकाता बनता है, लंदन, डरबन, इटली, सिसिली बनता है। पूरी दुनिया बनने से पहले एक इकाई की शक्ल में थी, डॉट। डॉट समझते हैं ना, WWW के बाद जो बिंदी लगती है ना उसे डॉट कहते हैं। बा के नीचे जो एक नुक्ता होता है, ता के ऊपर जो दो नुक्ते होते हैं ना उसी को डॉट कहते हैं। हमारे उलमा समझ रहे हैं इसको अच्छे से, और जो लोग इंग्लिश मीडियम में गए हैं या WW के बाद बिंदी को देखा होगा वो भी मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे। साइंटिस्ट का कहना पूरी दुनिया एक डॉट में थी, और उसने लिखा अपनी किताब में, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम राउंडली 13.8 बिलियन years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया एक सिंगुलरिटी की शक्ल में थी, अचानक वो डॉट फटता है, जमीन, आसमान, skies, animals, men, boys, girls, children, trees, everything in this world exception Allah, इसका वजूद हो जाता है। क्या ये बात सही है कि दुनिया बनने से पहले, सिलचर बनने से पहले, आसमान और जमीन से पहले एक डॉट की शक्ल में थी? यजुर्वेद के मानने वालों, what are you thinking about Big Bang theory? Replied, it is possible. महाभारत replied, it is possible. ऋग्वेद, तमाम मिलल, निहल, फिरक, मदाहिम, मशारिब, मकातिब, टॉप स्कूल्स, सबने कहा इट इज पॉसिबल, हो सकता है पूरी दुनिया एक डॉट से बनी है। ABCD वाले ने बाज़ाब्ता इसको लंच किया मार्केट कि पूरी दुनिया एक डॉट से बनी है। अब सीधा हम चलते हैं अलिफ बा ता सा वाले के पास। तेरी क्या राय है? तू क्या बोलता है? क्या दुनिया एक डॉट से बनी, एक सिंगुलरिटी से बनी? 1400 साल पहले इस क्वेश्चन का आंसर नबी के एक स्टूडेंट ने नबी से ले लिया। या रसूलल्लाह, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड, अखबिरनी मिन फज़लिक अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लिल अशिया। قال يا جابر إن الله تعالى قد خلق نور نبيك من نوره وجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تبارك وتعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور إلى 4 أجزاء فخلق من الجزء الأول اللوح ومن الثاني القلم ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع إلى 4 أجزاء إلى آخر। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर, अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरोबर नहीं है, खुशकोतर नहीं है, जिन्नो इंस नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है और उसी नूर से पूरी दुनिया की तख्लीक हुई है। A question arises in our mind, maybe in your mind also in this palace. Newton, Einstein, Oxford, Cambridge के वाइस चांसलर, तू
जिसे डॉट बोलता है उसकी हकीकत क्या है, उसकी हद बिल रस्म और हद बिल कुन क्या है, आया कहां से, रहता कहां से। हर सवाल के जवाब में साइंसदानों ने घुटने टेक दिए। हम इस्लाम से पूछते हैं बता वो डॉट की हकीकत क्या है, रहता क्या था। One day the prophet asked Jibril, oh Jibril, what is your age? तुम्हारी उम्र कितनी है? Replied, I don't know what is my age. जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते या रसूल अल्लाह मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है। हाँ, एक स्टार, एक तारा, should be noted this point, जमीन से तारा डॉट की तरह दिखता है। एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। प्यारे मुस्तफा ने जिब्रील से कहा, जिब्रील मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो तारा मैं हूं, मैं हूं, मैं। इसलिए मेरे भाई इस्लाम को कोई दुनिया के अंदर ओवरटेक नहीं कर सकता। बिगनिंग हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इस्लाम एक हाईवे है और बहुत आसानी से, मेरा टाइम खत्म होने जा रहा है। इस्लाम एक हाईवे है और समझना उसको तो ये समझ ले कि यहाँ से सिलचर जाने के लिए रास्ते में जगह जगह सिग्नल भी मिलेंगे आपको। अब यहाँ से इतने किलोमीटर, अब इतने किलोमीटर, राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, एरो का निशान भी होगा। मौला ये मादी हाईवे, डामर, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, रेत का, बगैर सिग्नल के हम नहीं चल पाते हैं। तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं, एबल टू टच नहीं है, एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू हग नहीं है, इस्लाम एबल टू किस नहीं है। ए अल्लाह, तेरे इस्लाम जो इस्लामिक हाईवे है चलेंगे कैसे? यहाँ कोई इंसान ऐसा नहीं जो ये कह सकता है कि आई हैव इस्लाम इन माई पॉकेट, इन माई हार्ट, मेरे पास इस्लाम है, क्योंकि वो एबल टू टच नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम 12 लाख रूल्स 1300 साल पहले इमाम आजम अबू हनीफा ने लिखा। इस्लाम मानने का नाम है, इस्लाम नबी की लाई हुई बातों को तस्लीम करने का नाम। मौला ये मादी हाईवे सिलचर एयरपोर्ट का बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते, तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं है, हम चलेंगे कैसे? दफा दखले मुकद्दर के तहत रब्बे कदीर ने नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा तो 80 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बनके इमाम आजम अबू हनीफा पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह के पीठ में रखा, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह का सिग्नल बनके पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा, 533 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बनके ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते हैं। ये इस्लामिक हाईवे के सिग्नल है। अब अगर कोई अल्लाह तक पहुंचना चाहता है तो उसे औलिया अल्लाह का सहारा लेना पड़ेगा। जो औलिया अल्लाह का सहारा लेगा वो मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा, और जो औलिया अल्लाह अंबिया के बगैर रब तक पहुंचना चाहे तो वो हरगिज हरगिज नहीं पहुंच सकता। और ये वक्त अजीम साइंटिस्ट कहता है खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। औलिया अल्लाह क्या है? सिग्नल है। जिस तरीके से ये रास्ते में जाने वाला वो बोले कि मैं सिग्नल की बात नहीं मानता। अच्छा, एक और सवाल हो सकता है आप लोगों से कि ये सिग्नल सब लोगों को नहीं दिखता, तुम्ही लोगों को दिखता है? अल्लाह के वली को सब लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह के सिग्नल है, तो तुम्हें को दिखता सिग्नल, हमको तो नहीं दिखता सिग्नल। तो उसको कहिएगा ब्रो, एक्टिवा जब रास्ते में नाइट में चलती है तो सिग्नल उसी को नजर आता है जिसके एक्टिवा में लाइट लगी हुई होती है। सिग्नल को देखने के लिए हेलोजन चाहिए, ट्रक में लाइट चाहिए, टोयोटा फॉर्च्यूनर में लाइट चाहिए। पता ये चला गौसे आजम अल्लाह के सिग्नल है, देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए, ईमान की रोशनी चाहिए। ये पॉइंट हो गया कि अल्लाह के वली ये लाजिम है मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए। एबीसीडी जो लोग पढ़ते हैं
बिल्कुल मोस्ट वेलकम, जरूर पढ़े, लेकिन ये याद रखिएगा कि दीन का तहफ़्फ़ुज़ एसपी कलेक्टर नहीं करता है, वो हमारी ड्यूटी है। इसलिए अपने घर के बच्चों को सबसे पहले अरबी के साथ में उर्दू कंपलसरी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम इंडिया में उर्दू में मोस्टली है, बंगाली में हो तो बंगाली, लेकिन उर्दू में मोस्टली है, इसलिए उसको जरूर हासिल करेंगे। और बुनियादी फर्क हमारे पास दसियों मिसालें हैं, लेकिन मैं वो देने की बजाय सिर्फ एक मिसाल दे दूं। एक माँ जुड़वा बच्चा जन्मती है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा, क्या किया जाए? एमबीबीएस फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्या राय है? का ऑपरेशन? एमडी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट? का ऑपरेशन? बीयूएमएस का एमडी सही बोल रहा, एसपी कलेक्टर आईएएस आईपीएस आईएफएस का एमडी की बात मान लो, तो वो जो कह रहा है वही करेंगे। गांव वालों ने क्या किया, अपने इमाम साहब से जाके पूछ लिया, इमाम साहब फला के यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जुड़ी हुई है, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है, क्या करें? डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करो, आपकी क्या राय है? इमाम साहब ने कहा हराम हराम हराम, ये हराम है। गांव वाले कंफ्यूज्ड, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट इट? हराम कह रहे हैं आप, डॉक्टर लोग, हुकामा लोग, उस लाइन के एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं ऑपरेशन, और आप कह रहे हैं हराम। यू हैव एनी सोल्यूशन? यू हैव एनी आइडियाज? यू हैव एनी मेडिसिन? यू हैव एनी पेन किलर? आपके पास कोई इलाज है? इमाम साहब कहते हैं हाँ है ना मेरे पास इलाज। इमाम साहब का इलाज सुने। इमाम साहब ने कहा 2 कब्र खोदो, एक में मुर्दा को रखो, दूसरे में जिंदा को, मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दो और जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। गांव वाले बहुत अच्छे थे, इमाम साहब की बात मान गए, क्योंकि वो गांव वाले सिर्फ फजर की नमाज में नहीं कहते थे इक़्तदईतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबती शरीफ अल्लाहु अकबर, वो फजर से लेकर ज़ोहर तक इमाम की इक़्तिदा में रहते थे, वो ज़ोहर से लेकर असर तक पीछे इस इमाम ही के रहते थे, वो मगरिब और इशा 24 घंटा रात में सोते भी थे तो इमाम के बताए हुए तरीके पर सोते थे। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज में इक़्तदईतु बिहाज़ल इमाम कर लिया और उसके बाद में इमाम साहब को अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं, वो लोग ऐसे नहीं थे, बहुत नेक और साले लोग थे, अपना लीडर और रहनुमा इमाम साहब को मानते थे। इमाम साहब ने कहा 2 कब्र खोदो, एक में जिंदा दूसरे में मुर्दा। इमाम साहब की बात मान ली, 2 कब्र खोद ली, एक में मुर्दे को रख दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया और जिंदा को कब्र में दूध पिलाने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद मिट्टी ने अपना काम कर दिखाया, जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया। ये मसला जिस इमाम ने बताया वो साबित का बेटा नुअमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात। ये बाज़ाब्ता उनकी किताब मनाक़िबुल इमामिल आज़म इमाम मुवफ़्फ़क़ में लिखा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम व सुन्नियत पर कायम दायम रहने, कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ, সময় খুবই সংকীর্ণ, আমরা আরো বেশি বক্তব্য শোনার ইচ্ছে ছিল।